राम के जन्म स्थान के अनुरूप एक मंदिर बनाएंगे। Ayodhya has been the epicenter of the intersection of both politics and religion in our country. It is widely believed by the Hindus to be the birthplace of Lord Ram and has been the focal point for the Ram Janmabhoomi agitations. The demolition of the Babri Masjid in 1992, constructed on what many Hindus believe was the precise location where Lord Ram was born, became a source of major communal discord across the country, triggering riots. The title dispute concerning who the land actually belongs to will be adjudicated in the Supreme Court. This has already been a protracted legal battle that could continue for a while as the Apex Court deliberates on a series of petitions that have been filed in this regard. But what about development in this temple town? As the politics over the Ram Mandir issue plays out ahead of the 2019 polls and the legal battle continues in court, what do the people of Ayodhya feel should be done to draw more tourists and pilgrims here? Hello and welcome to this Inside. I'm Madhav Gopalakrishnan. Today we are going to be taking you to an inside look into Ayodhya, the temple town on the banks of the Saryu River. Despite being the focal point of the Ram Janmabhoomi movement and taking center stage, not just as far as religiosity and politics is concerned, how has that changed the lives of the common citizens of this temple town? We'll find out over the next half hour. Yogi Adityanath took over as the Chief Minister of Uttar Pradesh in March 2017. He has made several visits to Ayodhya since then. There have been special trains commissioned to be part of a Ramayan tourism circuit that will of course include Ayodhya. The town was in the spotlight during Diwali celebrations last year, with both the Chief Minister and South Korea's First Lady Kim Jong-suk in attendance. And it is here that Adityanath announced the decision to construct a 221-meter tall Ram statue, something that he said would become part of Ayodhya's identity. In fact, he also announced that Faizabad district, of which Ayodhya town is a part, will be renamed Ayodhya. What do the people of Ayodhya, however, think? We are here on the banks of the Saryu River at Ram Ghat. While in Banaras, we've seen the face of the city completely change with the ghats completely cleaned up and developed. In Ayodhya, that's certainly not the case. And why not really develop the ghats of the Saryu? What change would that bring? We spoke to some of the boatmen here and this is what they had to say. घाट बन जाएगा तो यात्री रुकेगा घूमे टहरेगा तो अच्छा लगेगा, तो चार पैसा हम लोग भी पाएंगे। साफ सफाई नहीं रहता, सब गंदगी पड़ा रहता है, इसी वजह से यात्री बाहर के कम आते हैं। यहाँ तो भाजपा का सरकार है तभी इस प्रकार से हो रहा है कि इतना साफ सफाई हो रहा है। अन्य दिनों में इसके पहले में कोई सफाई नहीं था। हाँ, अभी तो विकास हो रहा है और आगे अगर इसी प्रकार भाजपा सरकार रहेगी तो और भी तेजी से इसका विकास होगा बनारस की तरह। और भी जो पिछले मुख्यमंत्री तो कभी नहीं आते थे, लेकिन योगी जी के आने से यहाँ पर काफी बदलाव आ चुका है अयोध्या में। Here on the Saryu Ghats, who better to get a sense from
what really is transpiring on ground than the boatmen over here. भाई साहब ये बताइए, आप कितने साल से बोट चला रहे हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ 10 साल से। अच्छा, लेकिन आपका मानना है कि जहाँ पे कई लोगों से जब हम बात करते थे अयोध्या में, तो उनका कहना है कि अयोध्या फैजाबाद पूरे इलाके में जो विकास है वो उस तरह से नहीं आ पाया जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह का स्थान अयोध्या का है। हालांकि धर्म के नज़रिए से, राजनीति के नज़रिए से बहुत बड़ी जगह है, राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है पूरी तरह यहाँ शुरू हुई है, लेकिन जो स्थान होना चाहिए वो उसका नहीं है। ये आप मानते हैं? विकास के नज़रिए से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। सर विकास पहले से पहले बहुत ज़्यादा हो गया, सही हो रहा है फिलहाल भी। जितना पहले अगले सालों में नहीं होता था, इसमें बीजेपी की सरकार में काफ़ी हो रहा है। क्या 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 किया है विकास? जैसे हो गया, ऐसे इधर हो गया, जो लाइन से वो बाहर से लटके रहते थे नंगे तार, वो सब अंदर हो गए हैं। और जो सोच के लिए जो बाहर सब लोग करते थे वो सब सुविधा हो गई है, अंदर सब कुछ हो गया है। और देखिए जैसे ये घाट है, and I just like the camera to show that this is the घाट really of the सरयू। जैसे ये घाट है, आप मानते नहीं कि इस घाट एरिया को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है? आप देख रहे हैं बनारस में क्या क्या किया गया है, प्रधानमंत्री का तो क्षेत्र है ही, लेकिन क्या उस तरह की डेवलपमेंट अयोध्या में भी नहीं हो सकती? आप मानते हैं कि अगर वो हो जाए तो यहाँ पे आपके जैसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा। यहाँ साफ सुथरा अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा रहेगा, तो टूरिस्ट भी ज़्यादातर आएंगे, हम लोग का भी फायदा होगा इसमें। The Hanuman Gadi temple is an iconic landmark in Ayodhya. So one of the concerns of the citizens of Ayodhya has been, of course, the issue of development. To talk about that, I have with me the Mahant of Hanuman Gadi, Raju Das, who is joining us. He is also a member of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, the youth wing of the BJP. ये बताइए कि यहाँ के नागरिकों का जिनसे हमने बात की, जो आम आदमी हैं, उनकी एक ये कंसर्न रहती है कि जहाँ तक विकास का मुद्दा है, अयोध्या में ये राम जन्मभूमि मूवमेंट का केंद्र रह चुका है, पॉलिटिक्स का एक केंद्र रह चुका है एक तरह से, लेकिन इसके बावजूद विकास के नाम पे यहाँ पे उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये ऐसा क्यों रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो सरकार थी वो विकास के नाम पे कुछ कर नहीं रही थी, वोट अपना लेती थी, हथियाती थी, काम चलता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी हुए हैं, और आप देखोगे अयोध्या दीप महोत्सव से लेकर चाहे संस्कृति, अयोध्या के जो अनुरूप संस्कृति व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। आप देखेंगे कि अभी आप जब 4 व्हीलर से निकलेंगे तो रोड के दोनों तरफ बढ़िया से तोड़कर पत्थरें लगाए जा रहे हैं। आप अगल बगल देखेंगे तो पहले आप देखे होंगे कि पूरे तार का जंजाल बिछा हुआ था, अब देखेंगे बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था हो गई है, नाली अच्छे बन रही हैं, रोडें अच्छे बन रही है। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत इन्होंने किया है। और राम की पैरी आप देखोगे, राम की पौड़ी आप जाओगे तो बहुत सुंदर तरीके से बनना स्टार्ट हो गया, तो विकास की कार्य तेजी से स्टार्ट हो गया। बहुत सारे जैसे मंदिर हैं उनको भी तोड़ने का ऑर्डर दिया गया सरकार की ओर से, लेकिन जो उधर के संत हैं उनका कहना है कि ये पुरातत्व और पुराने जो इमारतें हैं ये तो यहाँ के इतिहास का, यहाँ के कल्चर का एक प्रतीक है, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा लग रहा है अयोध्या का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा है कि जैसे कुछ महात्मा कह रहे हैं कि तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो मंदिर गिरने वाला है, जर्जर हो चुका है, सरकार ने उनको बताया, नगर निगम ने उनको बताया कि या तो आप मंदिर को बनवा लो या तो आप मुझको दो कि मैं आपको बनवा के दूं। वहाँ वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जहाँ विवाद है, जहाँ किसी न किसी तरीके से मंदिर को कब्जियाए हुए हैं, ऐसे लोग ही विरोध करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो अयोध्या में लोगों को आमतौर पे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान बहुत सदियों से शांति से एक साथ रहते हुए आए हैं। जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो उनके भी जो ट्रेडर्स हैं मुसलमान हैं, जो जूते जो यहाँ पे जो संत महात्मा पहनते हैं वो भी उन्हीं के बनाए हुए होते हैं। तो हिंदू मुसलमान यूनिटी का एक तरह से प्रतीक भी है अयोध्या। अयोध्या जैसे जगह दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इतना प्रेम से रहते हैं कि मुझको लगता है कहीं उतना प्रेम से रहते नहीं होंगे। मैं आपको घटना बता दूं, जिस स्पेस पे आप खड़े हो, हनुमानगढ़ी की ज़मीन में 3 मस्जिद इधर बनी हुई है। एक मस्जिद हमको लगता है यहाँ से ही आपको दिखेगा, वो जो सामने वाले झुनकी घाट है उसके और इधर वो वाली जो मस्जिद है, उस वो भी हनुमानगढ़ी के ही जमीन में है। ऐसा नहीं है, हनुमानगढ़ी के संतों ने जब राम जन्मभूमि पे मामला यह था कि कोई वहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले भी मंदिर रहा है और मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके तोड़ कर मस्जिद बनाया गया था। यहाँ का मुसलमान कहता है, राजनीतिक व्यक्ति की बात मत करिएगा, राजनीतिक व्यक्ति तो अपना रोटी सेकने के लिए कुछ बात आपको कहेगा, लेकिन यहाँ का जो ओरिजिनल मुसलमान है, जो
कहीं न कहीं यहाँ हिंदू से मुसलमान बने हैं, वो लोग जानते हैं कि यहाँ राम जन्मभूमि था। इसके नाते उन लोग का कहना था कि महाराज जी हम वहाँ तक नहीं जा पाते, तो वो साधु संतों ने उनको खुद अपनी ज़मीन में मस्जिद बनवा के दिया। शांति तरीके से वो लोग नमाज अदा करते हैं, शांति तरीके से वो लोग रहते हैं। यहाँ पे एक हवाई अड्डे और जो है एक अस्पताल अच्छे से यहाँ पे खुलना चाहिए, जो अगर खुल जाएगा तो हम लोगों के लिए और सभी ग्रामीण जनता के लिए, सबके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, सड़कों की और स्वच्छ भारत की जहाँ तक बात है, यहाँ पे आप क्या मानते हैं पूरी तरह से उसका काम किया गया है और करना बाकी है? क्या मानते हैं आप? और साफ सफाई की ज़रूरत है भी, और वैसे तो सरकार ने कर दिया है, जगह जगह पर वो धरा दिए गए हैं कि पॉलीथीन बाहर नहीं फेंका जाए और कूड़ा कबाड़ा बाहर नहीं फेंका जाए, उसी में रख दिया जाए। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, सड़कों बहुत जगह पर सड़कों टूटे फूटे हैं अभी भी, इसलिए अभी भी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। जी, आप बताइए, क्या आप मानते हैं कि जो पर्यटकों टूरिस्ट के आने की जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटीज़ है, होटल वगैरह, क्या वो पर्याप्त है इस वक्त अयोध्या में और लाने की ज़रूरत है? क्या मानना है आपका? और लाने की ज़रूरत है। यहाँ होटल ना मिलने के कारण बेचारे जो पर्यटक लोग आते हैं वो इधर उधर भटकते हैं। जैसे वो चले जाते हैं बस्ती के उधर, कहीं होटल ले लिए, कहीं उधर होटल ले लिए, 10-20 किलोमीटर से उनको आना पड़ता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये सरकार को इसके ऊपर और क्या, किन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए आपके? सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे धर्मशाला है, जो अभी धर्मशाला ठीक ठाक थोड़ा मरम्मत करा दें, थोड़ा और उसमें डेकोरेशन करा दें, जैसे रहने की व्यवस्था हो जाए। आप क्या मानेंगे कि सरकार को और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? और बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हम देखते हैं नए घाट पर राम की पैड़ी, वो बन तो रहा है, वो ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से बन रहा है। Time now for a quick break, but more on the inside coming up after the break. Stay tuned. यहाँ के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, आपस में कोई परेशानी नहीं है। पार्किंग का सुविधा नहीं, बिल्कुल एकदम। Welcome back. A key concern of the citizens of Ayodhya has been that even though this town has been at the heart of politics, it's been at the heart of religiosity, not enough has been done as far as the development of this town is concerned. This is what happened when we spoke to some of the common citizens. The population of Ayodhya alone is around 400,000 people. But with hundreds of thousands of visitors making their way here each year, the common concern among the people we spoke to was cleanliness or the lack of it. Hanuman Gadi is literally the gateway to the Ram Janmabhoomi. As you can see, this crowded marketplace is the way in which one accesses Ram Janmabhoomi. But at Hanuman Gadi, you would see literally over 100 such sweet shops over here. Let's go across and ask them why, in fact, laddus are the favorite over here. ये बताइए कि यहाँ पे लड्डू की दुकान इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या हनुमान जी का फेवरेट माना जाता है ये? यहाँ हनुमान जी का ये फेवरेट है, इसलिए यहाँ पर लड्डू का ही भोग लगता है। ये बताइए, मार्केट में यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बहुत क्राउडेड मार्केट होता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, जितने राम भक्त होते हैं जो जहाँ जन्मभूमि में दर्शन और हनुमान गढ़ी में दर्शन करने जाते हैं। लेकिन मार्केट की अगर हम साफ़ सफाई की बात करें, अभी भी बहुत होना बाकी है। क्या आप क्या मानते हैं कि आपकी दुकान यहाँ पर आप इतने साल से देख रहे हैं, क्या कुछ फ़र्क हुआ है? क्योंकि योगी जी ने काफ़ी वादे किए हैं, क्या वो वादे पूरे हुए और करना कुछ और बाकी है? आपका क्या मानना है? किए हैं और बहुत कुछ अभी बाकी है। जैसे कि सफाई तो होती है, मगर जो है ये जो गड्ढे वड्ढे होते हैं ये सभी जैसे पाटते नहीं तुरंत। जब कोई आवाई होती है किसी मंत्री या और कोई भी, तो ये गड्ढे वगैरह जो है सफाई कर देते हैं उनको दिखाने के लिए, उसके बाद फिर वैसे ही हालत हो जाती है। और उसके बाद जो है आपका पार्किंग का सुविधा नहीं, बिल्कुल एकदम, जो कि यहाँ पर गाड़ियों की जो है जो संख्या बढ़ जाती है, उससे आवागमन बिल्कुल बाधित हो जाती है। कुछ जगह ऐसी हैं जो ढंग से बनी नहीं है, जिसकी वजह से सफाई पर्याप्त हो नहीं पाती है। और दूसरी है डस्टबिन यहाँ पे उपलब्धता कम है, और सुलभ कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत यहाँ पे है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। Even as the developments in Ayodhya, particularly in 1992, triggered riots across the country in which thousands were killed,
The town itself has for long set an example of communal harmony. A clear indicator of the syncretic culture here in Ayodhya is the fact that these sandals, also known as khadao, made out of wood that are used by the sadhus and sants here in Ayodhya, are largely made by craftsmen who are Muslims. Let's talk to one of them who is with us right now. आप ये बताइए, ये जो खड़ाऊ है जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, साधु संत लोग इसी पे को पहनते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कारीगर ही इसको बनाते हैं ट्रेडिशनली। जी, यहाँ पे मुस्लिम दुकानें हैं, 2-3-4 दुकानें हैं जो मुस्लिम कारीगर ही बनाते हैं। अधिकतर यहाँ पे खाली 1-2 हिंदू कारीगर होंगे जो बनाते नहीं, अधिकतर मुस्लिम। कई पुश्तों से काम होता चला आ रहा है, 1-2-3 पुश्तों से काम होता चला आ रहा है, लोग करते हैं। और अब खड़ाऊ में उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं रह गई है, लेकिन लोग करते हैं। हाँ, बाहर जो एक तरह का ये माहौल है, या आप कह सकते हैं प्रचार है कि हिंदू और मुसलमानों में बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया राम जन्मभूमि का, लेकिन असल में लोग एक साथ मिलकर और साथ जीते हैं, और ये भी एक सच्चाई है अयोध्या की। हाँ, ये तो बात सही है, यहाँ के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ के आसपास के पड़ोस के कोई मोहल्ले के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, यहाँ के मुस्लिम हिंदू भाइयों से कोई परेशानी नहीं है। बस ये होता है जब कोई बाहर के लोग आते हैं तब थोड़ी हम लोगों को परेशानियाँ होती हैं। किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? लोग आते हैं और थोड़ा सा हुड़दंग मचाते हैं, और अब समझ सकते हैं आप किस तरीके की परेशानियाँ होती होंगी। जी, जैसे अभी लेकिन अयोध्या में यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोगों को किसी तरह की आपस के में किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह की परेशानी नहीं है। नहीं, यहाँ के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, आपस में कोई परेशानी नहीं है। The security around the disputed site is heavy, and understandably so. नहीं कर रहे सिर्फ नहीं, बाहर यहाँ पे कर सकते नहीं, यहाँ पे से इधर कहीं नहीं, यहाँ पे भी नहीं ले सकते, तिराहे से इधर कहीं भी नहीं। तिराहे कहाँ? उस तिराहे से? हाँ, तिराहे से बाएं तरफ कहीं भी है। अच्छा, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, हम दिखाना चाह रहे थे ना, यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये दिखा तो सकते ना सिक्योरिटी कहाँ पर है। This is the last spot until which cameras are allowed on the way to Ram Janmabhoomi, for which in fact multiple layers of security checks are there just a few meters away from here. But as you can see, this particular area as well is one that many would say would require, or certainly many would expect, to have certainly better standards in terms of the hygiene and cleanliness. And this is what a large number of citizens of Ayodhya as well as tourists who we spoke to have told us. पहली बार आया राम? हाँ, पहली बार आया। कैसा लगा आपको इधर आके? इधर आके बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन साफ सफाई चाहिए इसमें। और जो ये है क्या राम जो है हमारा, वो कस्टडी में है, वो नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा फ्री होना चाहिए सब भक्तों के लिए। ऐसा मिलिट्री इतना बंदोबस्त की जरूरत रहना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो मेंटेनेंस होना जरूरी है, यहाँ के प्रशासन ने अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और 1 किलोमीटर जो हम पैदल चल के आए, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनको प्रॉब्लम्स होते, तो डायरेक्ट यहाँ पर गाड़ी आनी चाहिए। और जो रास्ते में मुझे डर्टीनेस दिखा, वो क्लीननेस होना चाहिए। अभी इतना साफ सफाई दिख रहा नहीं, अभी यहाँ पे होना चाहिए, अभी मंदिर भी होना चाहिए। The impression that we walked away with was that there was a lot of room for improvement for making Ayodhya more tourist friendly. But also that things have been looking up on that front since Yogi Adityanath has taken over. While the construction of a Ram temple in Ayodhya is something that is undoubtedly a development that thousands of pilgrims who visit this sacred temple town as well as those living here yearn for, there are some immediate concerns that need addressing as well. How proactively that will be done remains to be seen. And with that, it's a wrap on this Inside. Thanks so much for watching.